Good morning, everyone. Am I audible? Is my voice clear or not? Yes or not? Reaching Malay Samit. Am I audible properly or not? Karan, Janil, are you there? Yes, ma'am. Okay. Reaching Malay Samit, are you there or not? Yes. Then you didn't respond me. Why? Okay. So let's wait for some time. After that, we will start our lecture. મેમ આપણે ગુડ ફ્રાઈડે ની રજા હશે ફ્રાઈડે ના ना नहीं हुई. Okay, I think no further students will join. So let's see the questions of our tutorial 1.3. I think Neelam madam has explained multiplication of polynomials, right? Or not? યસ મેમ So how many questions are done for multiplication of polynomials in tutorial 1.3? Can you tell me please? મેમ એમ ટ્યુટોરિયલ નથી સીધા સમ જ સોલ્વ કરાવ્યા નહીં ટ્યુટોરિયલ લેબ કયું હતું એ નથી સેશનની ખબર વાત કરું છું લેબ સેશનની તમારી એટલે જ્યારે લેબ સેશન લાસ્ટ આવેલી હતી અચ્છા જેમાં નીલમ તમારી ને મેડમ મારી નહીં મેં તો તમને ટ્યુટોરિયલ વન હા પોઈન્ટ વન 1.2 કરાવેલું હતું. હા, એટલે નીલમ મેડમે તે એટલે ટ્યુટોરિયલ એમ લખેલું નથી અમુક સમ સોલ્વ કરાવેલા ઓલા મલ્ટિપ્લિકેશન ના ને એના ઓકે જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કરેલું હતું એ પેજનો તમે મને પિક સેન્ડ કરી શકો છો. હા ઓકે
કે જસ્ટ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થયું હતું, બરાબર? ઓકે. ઓકે, ડન ડન. Okay, so total how many questions were done for multiplication? Can you tell me? 8 ક્વેશ્ચન ઓલા કર્યા હતા. Multiplication वाला. હા, ઓલું ફાઇન્ડ વાય સ્ક્વેર પ્લસ 3/2 ઇન્ટુ પછી વાય સ્ક્વેર માઇનસ 3/2, ઈ જે પેલો સમ હતો. અને લાસ્ટમાં જે હતો ને સમ, ઈ x+1 x ઇન્ટુ x-2 ઇન્ટુ x-5 વાળો હતો. Okay, okay. So question number 9 now. Question means કે question 1 find the multiplication એવું કઈ નથી લખાવેલું, right? હા, એટલે ફાઇન્ડ લખેલું હે, મેં તો પછી હવે ખબર નહીં એમાં લખેલું હતું કે નહીં. Okay, okay. So let's see the question here. Write down everyone. क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ हम लिखेंगे क्वेश्चन. वेट वेट, समथिंग इज रॉन्ग हियर. क्वेश्चन राइट डाउन एवरीवन. न्यू क्वेश्चन उसी में ही, ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन वाला किया स्टार्ट, वहां पे हेडिंग दे दो ट्यूटोरियल 1.3. Tutorial 1.3, that was the tutorial 1.3, and the heading for tutorial 1.3 is multiplication and division of polynomials. So basically we will see multiplication and division of the polynomials in this tutorial. In this tutorial 1.3. Okay. Now let's see question. न्यू क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हुए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, चल जाएगा. राइट डाउन. डिवाइड the polynomial. Divide px divide px by qx. Divide px by qx. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग px डिवाइडेड बाय qx, या तो qx डिवाइडेड बाय px, कौन सा होगा? ये वाला P या ये upon वाला? Q. p अपन q और q अपन p. श्योर? p अपन q. Q by Yes. कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट. फर्स्ट. श्योर? yes, ma'am. First. यस, सही है, फर्स्ट. ठीक है, तो हमें पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स फाइंड करना है. एंड आई थिंक लेक्चर में आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया है या नहीं? हाँ या ना? ઓલું મલ્ટીપ્લાઇંગ પોલિનોમિયલ ઈ કરાય તું પછી. लेक्चर में હા, ના ના, ઈ ડિવિઝન વાળું લગભગ નથી કર્યું. આવી રીતે થયું છે આવું, x માઇનસ વન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એક્સ પ્લસ વન આવું કંઈ નહીં નહીં કરાયું છે? નહીં, ના ના ના, બાકી છે બધું. બાકી बाकी છે है. બાકી ओके છે. ओके, कोई बात नहीं. लेट्स सी कि कैसे डिवाइड करना है. ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट, वो क्वेश्चन में फर्स्ट सम px equals to x cube minus 2x square plus 4, sorry, minus 4
and q of x equals to x minus 3. Okay, let's see the example here. Is this one? How to solve? We need to find px divided by qx, right? तो अगर आपको ऐसा दिया है कि 10154 डिवाइडेड बाय लेट्स से 2, ठीक है, कैसे करोगे आप? तो हम ऐसे करते हैं, 2 बाहर, ये 154 अंदर, ये डिविडेंड बोलते हैं इसको, इसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। फिर डिवीजन कैसे करोगे? 2 7 14, ठीक है। ये मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ये पॉलिनोमियल में फिर आप कंसेप्ट आपको मीन्स की चेंज होता हुआ दिखाई देगा, मीन्स की समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे करा रही हूँ। मीन्स की यहाँ पे हम क्या करें, 2 into 7, ठीक है, 2 into 7 दैट विल बी हियर, राइट। 2 into 7 दैट विल बी हियर 14। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या बचेगा 1। नाउ 4 will be brought out at the bottom, and now again 2 into 7 that will be 14, and this is the subtraction is 0. This is called quotient and this is called remainder. ओके okay? यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे ये नंबर्स थे तब ऐसा था, अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, तब हम क्या करेंगे? तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। वी नीड टू डिवाइड px by qx, so this term will be like this x cube minus 2x square minus 4 will be dividend, and x minus 3 is divisor, right? Now where to start, विच टर्म शुड बी, यहाँ पे कितनी कौन सी टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे सी हम क्या, कैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 14 क्यों लिया, क्यों 2 7 ही लिया हमने, ऐसा क्यों? तो हमने 15 को 2 से डिवाइड किया, राइट। 15 को 2 से डिवाइड किया तो सबसे बड़ा वाला नंबर आपको 7 मिल रहा है, 7 पॉइंट समथिंग, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि हम करेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करो। क्या आंसर मिल रहा है? तो एक्स स्क्वायर। तो दिस नंबर विल बी हियर। नाउ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे कहते थे 2 into 7, और वो आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको या नहीं? यस मैम। हाँ या ना? ओके। तो एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो टर्म यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। सो दिस टर्म विल बी हियर। नाउ क्या करना है, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऐसे दो टर्म्स है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो मीन्स कि हम इन दोनों को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो हम उसकी न्यू साइन है वो यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे। तो ये एक्स क्यूब जो है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगी, और ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो अब न्यू साइन हमें ये वाली कंसिडर करनी है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या मिलेगा, this will be cancelled out. Now minus 2x square plus 3x square क्या मिलेगा, माइनस 2 प्लस 3 क्या मिलेगा, माइनस एक्स 2 स्क्वायर। प्लस 3 ओनली 1, तो 1 into x square that is x square,
Now this term should be brought out here. नाउ अगेन ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखनी है। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? एक्स, तो वो यहाँ पे टर्म आएगी, तो प्लस एक्स। इसकी साइन जो है उसको भी साथ में लेके आना है, तो ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्स लिखेंगे, तो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो अब x से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नेगेटिव पॉजिटिव। सी नाउ हियर, यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्लस 0x लिखेंगे और -4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, प्लस 0x -4, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, इसीलिए। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? तो ये -4 को नीचे लेने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हमने 0x को नीचे लिया, ऐसा बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, प्लस 0x प्लस 3x, क्या मिलेगा? ओनली प्लस 3x। नाउ -4 को नीचे ले लो। नाउ 3x को x से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? +3, यहाँ पे लिखती हूँ। 3x को x से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 3, तो +3 यहाँ पे आएगा। नाउ 3 इंटू दिस टर्म क्या मिलेगा? तो 3x माइनस 9, सब्ट्रैक्शन करना है, we cancel out, plus 9 minus 4, that is the answer is 5. So this is quotient, sorry, remainder, and this one is quotient. तो हमें आंसर कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हमें आंसर क्या लिखना है? 10, 10, the quotient is x square plus x plus 3 and remainder is 5। आया समझ में सबको? यस मैम। लिख दो ये। ये साइड में लिख लेना, सो दैट आपको आइडिया आए कि क्या करना है। आप इसको क्यू, सिर्फ क्यू से भी डिनोट कर सकते हो और आर, ठीक है, ऐसे दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो भी चल जाएगा, क्वोशंट एंड रिमाइंडर।
ओके, आई थिंक हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, बाकी है 1 मिनट। ओके। Okay, now done. यस मैम। Next question. Second one. Px equals to x cube minus 3x square minus x plus 3, and qx equals to x minus 1. सेम वे से जाना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पे आपको ये चेक करना है, एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी की आगे वाली सभी टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक आगे यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं थी तो हमने यहाँ पे 0x ऐड कर दिया था। तो आपको ऐसे अगर वो कम पड़ रही है तो वो हमें ऐड करनी है। ठीक है, नाउ x माइनस 1 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, तो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो एक्स क्यूब divided by x. The remaining term is x square. So this will be here. Now x square से x minus 1 को multiply करो, क्या आएगा, तो x cube minus x square, वो टर्म यहाँ पे होगी x cube minus x square। नाउ डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन करो तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गए। नाउ -3 + 1, -3 + 1 क्या होगा, -2x²। ये -2x²। नाउ ये टर्म को हम यहाँ पे लेते हैं। Again, this term should be divided by this x. तो -2x² जो भी साइन है वो साथ में ही रखनी है। तो माइनस यहाँ पे हमें लेना है नेगेटिव साइन, तो क्या मिलेगा, -2x। तो दिस विल बी हियर -2x। नाउ -2x into x minus 1, this will be -2x² plus 2x²। तो -2x² plus 2x। तो सब्ट्रैक्शन करना तो प्लस माइनस, both will be cancelled out. Now -1 -2, this will be -3x, and last term +3. Again same repetition, -3x upon x, this will be -3. Now minus ओके ओके यहाँ पे -3 होगा। नाउ -3 को x minus 1 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बी -3x plus 3, -3x plus 3। Do this subtraction, so plus and minus, -3x plus 3x, 3 minus 3, answer is 0. So we'll write here
The quotient is x square minus 2x minus 3 and remainder is 0. Write down. મેમ તમે સાઈડમાં બધા કેલ્ક્યુલેશન્સ લખ્યા છે એ તો નથી લખો ને. ના એ જસ્ટ સમજવા માટેના છે એટલે લખજો તમે. જો સમજાઈ ગયું છે તો લખવાની જરૂર નથી. Done or not? Okay, I consider कि हो गया है. Next, क्वेश्चन नंबर 3. ये खुद से करना है आपको. Px equals to x cube plus 6x square plus 13x plus 15 and qx equals to x plus 3. ट्राई करो खुद से. अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ. क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ. अगर नहीं हो पा रहा है तो हो रहा है या नहीं હમણાં सबके કરજો पास. ને. हाँ करूँ. થોડી વાર પછી સોલ્વ કરજો એમ. ओके ओके.
मैम एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4। Yes, सही है. And remainder is 3। आपको नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगी. X cube plus 6x square plus 13x plus 15 and x plus 3. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा तो x cube plus 3x square. Now let's do the subtraction. Okay, this will got cancelled out. This will get cancelled out. Now kx square is remaining plus 13x. Now minus 3x, so plus 3x, 3x square plus 9x. And this will be 4x plus 15. Now plus 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4x plus 12 negative negative, and the answer is, so quotient is x square plus 3x plus 4 and remainder is 3. Yes, anyone? किसी ने हैंड रेज किया या तो कमेंट की? मुझे सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है. स्क्रीन यहाँ पे ये मेरी चालू होती है तो आप जो भी कमेंट करते हो वो मुझे नहीं दिखाई देता. So kindly unmute yourself and tell me if you want to say anything. હેલો મેમ. Yes, हाँ, આ જય સરે તમને કઈ લેક્ચર નું કીધું હતું? ना. એટલે અમે એમ કહે છે કે ટ્યુટોરિયલ ના લેક્ચર બધા તમે લ્યો. કેમ? બસ એમ. પણ મેમ મારે બીજા નથી ક્લાસમાં સમજાતું બહુ. હોય છે. નીલમ મેમ માં બહુ ટ્યુટોરિયલ માંથી સમજાતું. તો તમે એમને એટલીસ્ટ વાત કરી જુઓ. બરાબર? પણ તમે ન મારે લઈ શકો. મારે બીજા ક્લાસમાં લેક્ચર્સ હોય એન્ડ આઈ એમ ફુલી લોડેડ. મેમ ખાલી લેબ જ થિયરી તો કાંઈ વાંધો નહીં, હા, લેબ બટ ખાલી તમે લઈ શકો. હા, એમાં કેવું થાય, પર ક્લાસ જે લેક્ચર લેતા હોય એમને જ લેબ લેવાની આવે, બટ ટાઈમ ટેબલ સેટ નથી થતા એટલે એ પોસિબલ નથી બનતું. તો મેમ ટ્રાય કરજો ને થાય તો. હા, ટ્રાય કરેલી જ છે બટ નથી થતું. તો પણ તમે એક વખત જસ્ટ મેડમ સાથે વાત કરી જુઓ, એનું કંઈક સોલ્યુશન નીકળશે. બરાબર? કેમ કે મારે બીજા ક્લાસમાં પણ લેક્ચર્સ હોય છે. I think this question is done, right? Let's see the another question. Question number 4. Px equals to 2x raised to 4 minus 9x cube plus 21x square minus 26x plus 14 and મેમ સ્ટાર્ટિંગમાં શું લખ્યું 2x? raised to 4 ઓકે. and qx equals to 2x minus 2. Try to solve this.
मैम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। Yes, very good. And the remainder is? 2. Yes, very good. See. Everyone got the answer like this or not? એમ હજી કરી Everybody? છે. Okay, okay. યસ મેમ આવી ગયા. Okay. I'm solving here. Something is wrong. Okay, okay, negative, negative. So this will be negative, will be positive here, and the remainder is 2. So quotient is x cube minus 3x square plus 6x minus 4, and the remainder is 2. अगर नहीं हुआ है आपका तो ये स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. सी आपको ये डे बाय डे की सब पीपीटी जो है वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है. p of x equals to x cube minus 12x square minus 12x square minus 42, and q of x equals to, and q of x equals to x square minus 2x plus 1. Now see, अभी तक जो हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे कैसा था, क्यू एक्स एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री, 2x-3 मीन्स की लीनियर टाइप का था. x की डिग्री 1 ही थी. अब यहाँ पे कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. खुद से कर पाओगे या नहीं? ટ્રાય કરી. यस, ट्राई करो. नहीं होता तो मैं आपको कराती हूँ, ठीक है. सेम वे से ही जाना है आपको. That's it. यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो 0x ऐड कर देना.
दो स्टेप में ही आंसर आ जाएगा इसका। x-10 रिमाइंडर। -21x -32. वेरी गुड। ट्वेंटी वन एक्स माइनस 32। So question is x minus 10 and remainder is 21x minus 33. मैम हाँ, -21x okay, minus 21x minus 30. Okay, now the question number 6. X raised to 4, sorry, p of x equals to x raised to 4 plus 4x cube minus x minus 10, and q of x equals to x square plus 3x minus 5. सॉल्व करोगे? Ma'am, x square plus x plus 2. Yes. And remainder
minus 2x. Correct. यहाँ पे x4 वाली टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं उसको। यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने। Okay. Now next question. 7. મેમ એક મિનિટ આગળનું કરો તો हाँ हाँ ક્વેશ્ચન 6 यस यस। હવે ચેન્જ કરનો Okay. 7th question now. P of x equals to 6x raised to 4 plus 5x cube plus 4x minus 4, and q of x equals to 2x square plus x minus 1.
आई होप कि सबको ऐसा आंसर मिला होगा। यस और नॉट मिला या नहीं मिला तो मुझे यस बताना। मैम। यस। तो हमें मिला ऐसा या नहीं? No, it's not. મેમ हम्म। ઓલું ડિવાઈઝર હોય તો એમાં ઓલું ધારો કે 0x આમ એડ કરવા વાળો એ રીતનો પૂછાય શકે? हाँ एज करिए छे नेक्स्ट क्वेश्चन ए टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 p of x equals to x raised to 4 plus x cube minus 3x square minus 5x plus 4 and q of x equals to x square minus ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करोगे और जो सब्ट्रैक्शन के लिए जो लिखोगे टर्म वो टर्म और जो डिविडेंड वाली टर्म है वो मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको उसमें कुछ टर्म को ऐड करना होगा। आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं करती हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। મેમ हम्म, માં ઓલું ધારો કે આપણે 0x એડ કરી બરાબર q of x हाँ માં हाँ તો ઉપર x સ્ક્વેર આન્સર આવે તો એની 0x તો 0 થઈ જાય। कई रीते જોઈએ चलो। इससे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से, राइट। तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्यूब वाली भी टर्म है तो हम क्या लिखेंगे इसको एक्स रेस टू 4 प्लस 0x³ माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, लाइक दिस। મેમ ઈ ટર્મને સ્કીપ કરી નાખી તોય ચાલે ને? સ્કીપ કરો, હા અહીંયા ના લખો ને સ્પેસ છોડીને પછી આની નીચે લખો, કઈ વાંધો નહીં, ચાલે। અલ્ટિમેટલી તમને કમ્ફર્ટેબલ લાગવું જોઈએ, કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ ન થવી જોઈએ, બસ એટલું જ। ઓકે સમજી ગયો। Okay. So this will be x³ minus 2x square. Similarly, follow the same process.
मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू x square plus x minus 2. Yes, very good. અને ઓલું માઇનસ ફોર એક્સ માઇનસ ટુ Minus 4x minus 2. No. સોરી Minus માઇનસ 4x ફાઈવ એક્સ minus 4x plus 6, I think. એક 1 મિનિટ -4x+2 આવશે રિમાઇન્ડર. હા માઇનસ ફોર એક્સ Plus 2. Let's see. માઇનસ मैम +6 नहीं है। Yes, plus 6 आएगा. Let's see. Let's see. Negative 2. Plus 6. The quotient is x square plus x minus મેમ +2 1. આવે જો ઉપર -2 ઇન્ટુ -1. Minus 2 क्या? ન્યા નહીં મેમ લાસ્ટમાં સાવ લાસ્ટમાં Last mark એ क्या? એમાં થર્ડ ટર્મ ન્યા Okay, -2 okay, okay, થોડુંક okay. ન્યા +2 આવે ને. Yes, yes, yes. Plus 2. Yes, correct. Good. મેમ Hmm. ઈ કરતા ઓલું માઇનસ ફાઈવ એક્સ ઓલું બીજા ઓલામાં હે તો ઉપર પ્લસ ફોર ઉતારી ન દેવાનું હોય Minus 5x તો ઉતાર્યું આપણે અહીંયા. હા તો અહીં પ્લસ ફોર એ ન ઉતારી દેવાય એ કારે બંને એક સાથે કઈ રીતે ઉતારાય? એટલે મેં એ રીતના જ કર્યું પણ તોય મારે -2 આવે એક એક વન બાય વન આપણે સ્ટેપ્સ કરીએ ને, આપણે એક જ ટર્મને એટ અ ટાઈમ નીચે ઉતારવાની. ઓકે નહીં તો ડિરેક્ટલી થઈ જાય પેલું ડિવિઝન આખે આખું જ. બરાબર? એ +4 તમે અહીંયા નીચે લીધું હશે તો અહીંયા +4 સાથે આવતું જ હશે, સાથે ને સાથે. પછી છેલ્લે +4 નું કંઈક થશે, એની સાથે આપણને કંઈક ટર્મ મળશે, so that આપણે સબટ્રેક્શન કરી શકીએ. And now we have not last question, last second. Ninth question. Px equals to 2x raised to 4 minus 3x cubed plus 6x minus 2. And qx equals to x square minus 2.
2x square minus 3x plus 4 Yes. and all 6. अगर सबको ऐसा आंसर मिला है तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं नहीं करती, सिर्फ आंसर लिख दूँ। या किसी को नहीं मिला है ऐसा आंसर तो मुझे बताओ। ये सिर्फ हम आंसर मिला सबको। Yes, ma'am. ओके, बाकी के स्टूडेंट्स, ब्रिजेन, मलाई, जनिल, रोहित, आप हो कि नहीं? अपन बाकी के स्टूडेंट ने मोबाइल साइड पे रख दिया है, राइट? ओके, Yes, ma'am. okay. Let's see the last question of this tutorial. End question. P of x equals to 3x cubed minus x square plus 2x minus 5 and qx equals to 2x plus 1. This one is a tough, bit tougher question. पहले सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा है तो मैं आपको समझाती हूँ। बट यस, टफर क्वेश्चन क्यों है तो वैसे इतना कुछ है नहीं इसमें, बट इसमें क्या होगा कि जो टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में होंगे, दैट्स इट। साइड में इसमें कैलकुलेशन करनी जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। મેમ ક્વેશ્ચન ને ફ્રેક્શન માં રાખે કે ડેસિમલ માં રાખે? नहीं, फ्रैक्शन में।
मैम हम्म, 3/2x² हाँ, -5/4x प्लस 13/8 यस, અને ઓલું જે છે એ -61/8 नो, -53/8. નહીં 1 આવે લાસ્ટમાં બચે છે -5 -13 / 8, રાઈટ? -5 પછી -13 / 8. હવે બે થર્ડ ટર્મ્સ બચે છે. હા એટલે એમ ઈ છે પણ એનું જે ઓલું હા, સોલ્યુશન એલસીએમ લેશો. કરીને એટલે એલસીએમ લેશો. 61/8 આવે. એલસીએમ 61 કેવી રીતે આવે? 8 5 40. તમે 40. કરી લ્યો ને એકવાર. ઓકે, ઓકે, કરીએ છીએ. બાકીનું બધું બરાબર છે. ओके, 3x³ को 2x से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 3/2x²। तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा 3/2x² से। तो अगर 3/2x² से 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 3x³ प्लस 3/2x²। ओके, 3x³ प्लस 3/2x²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये क्या बचा? -x² मीन्स की -1 -3/2। तो क्या होगा? -2 -3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -5/2। तो ये बचता है -5/2x² प्लस 2x को नीचे ले लो। अब अगेन ये फर्स्ट स्टेप था। नाउ सेकेंड स्टेप के लिए -5/2x² को 2x से डिवाइड करो तो ये 2 जो है वो नीचे जाएगा। तो -5/4x से मल्टीप्लाई करना होगा। ये टर्म यहाँ पे -5/4 इंटू एक्स। नाउ -5/4 इंटू एक्स को 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? -5/2x -5/4x। यहाँ पे x²। तो -5/2x² -5/4x। ये प्लस प्लस ये कैंसिल आउट। नाउ बचती है टर्म -2 इंटू एक्स, तो हम एक्स को इग्नोर करते हैं। +5/4, सॉरी प्लस है प्लस। ओके, तो 8 + 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आंसर बचता है 13 डिवाइडेड बाई 4 एक्स। -5 को नीचे ले लो। नाउ थर्ड स्टेप 13 डिवाइडेड बाई 4x अपॉन 2x। तो क्या मिलेगा? 13 डिवाइडेड बाई 8। पॉजिटिव 13 डिवाइडेड बाई 8। अब 13 डिवाइडेड बाई 8 को 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 13 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 8 ऐसा मिलेगा। तो 13 डिवाइडेड बाई x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 8। नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट। बचा -5 -13 डिवाइडेड बाई 8। इसका आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे करते हैं, चलो -5 -13 डिवाइडेड बाई 8। तो 5 इंटू 8 दैट इज -40 -13 होल डिवाइडेड बाई 8। क्या मिलेगा? ये 0 + 3 3 और 4 + 1 5 और बड़े की साइन। तो दिस आंसर इज -53 डिवाइडेड बाई 8। Thus, the quotient is 3 divided by 2x square minus 5/4x plus 13 divided by 8. And the remainder is -53 divided by 8.
सब कैलकुलेशन है। Done everyone or not? Okay. Now next tutorial. Okay. Prepare tutorial 1.4. Tutorial 1.4. Let me see the um, heading for the tutorial. Algebraic identities. And the heading is algebraic identities. Identities. Algebraic identities. Welcome everyone. Tutorial 1.4. મેમ આ ચેપ્ટર 1 માં કેટલા ટ્યુટોરિયલ છે? ઘણા બધા સી અહીંયા આપણે જોઈએ આપણા સિલેબસનો પોર્શન છે બરાબર સિલેબસ છે મેં તમને ડિસ્કસ કરેલું હતું આઈ થિંક રાઈટ હવે આ જે કન્ટેન્ટ જે છે તે લેક્ચર માટેનું કન્ટેન્ટ છે ના લેબ માટેના કન્ટેન્ટ તો કેટલા દેખાય છે આમાં તમને ટોપિક એટલા ટ્યુટોરિયલ હશે તો our first is polynomial in one variable is 1.1 or 2, addition and subtraction 1.2. Then yes, this 1.3 was one multiplication and division of polynomial. Now 1.4 is algebraic identities. પછી 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 and 1.9 આટલા થશે tutorials. હા જો કે આ જે છે તમને આ દેખાય છે linear equations in two variables એનો કોઈ ટોપિક સ્પેશિયલી નહીં હોય તો આ જે છે આ બધા આ જે છે તો એના ક્યાં તો કમ્બાઈન અમે રાખશું અને ક્યાં તો પછી જસ્ટ 5, 5, 6, 6 સમ્સ એની અંદર હશે અને એનું બહુ કંઈ ખાસ એટલું વધારે નહીં હોય નાના નાના ટ્યુટોરિયલ્સ જ હશે લાઈક આપણે ફર્સ્ટ લેબમાં જ આપણે ટ્યુટોરિયલ 1.1 એન્ડ 1.2 બંને સોલ્વ કરી નાખેલા તો જેટલા ટોપિક છે એટલા ટ્યુટોરિયલ્સ હશે સિમિલરલી આ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં જેટલા ટોપિક્સ છે એટલા એમાં ઓછા છે ટોપિક્સ So for that we need to discuss about algebraic identities. So let's write algebraic identities. Write down everyone algebraic identities.
algebraic identities means કે કોઈ algebraic terms છે, ठीक है, कोई algebraic terms है, उनका स्क्वायर या उनका क्यूब, ठीक है, इस टाइप की टर्म्स जो है उसको कैसे एक्सपांड करना है, या बड़ी टर्म है तो उसको कंप्रेस कैसे करना है, या तो उसको फैक्टराइज कैसे करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट algebraic identity is, write down everyone, x plus y whole square equals to x square plus twice xy plus y square. Everyone knows, right? Next is x minus y whole square. What will be the term? Anyone? What is the expansion of this x minus y whole x square? square minus 2xy. Yes, minus twice xy plus y square too. वैसे अगर ये आ रही है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमने यहाँ पे लिख दिया। थर्ड वन इज x plus y into x minus y. ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, थैंक यू। x plus a into x plus b, ये दोनों नंबर्स है अब, और वेरिएबल एक ही है x वाला, तो इसका एक्सपेंशन आई थिंक ये किसी को नहीं पता होगा, ये होगा x square plus a into b into x, a plus b into x plus ab. Next, ये कोई बता सकता है? किसी को अगर पता है कि दो तरीके से इसको हम लिखते हैं। एक तो है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब, या तो दिस इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों अगर इसको हम एक्सपांड करें, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो सेम हमें यही टर्म मिलेगी। ओके, 6 सिमिलर x माइनस वाई होल क्यूब। इसमें इस तरीके से अगर लिखनी है तो सब अल्टरनेट साइन होगी, तो एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड नेगेटिव होगी, सेकेंड नेगेटिव तो थर्ड पॉजिटिव एंड फोर्थ नेगेटिव। या तो अगर नेगेटिव में ये ब्रैकेट वाली टर्म के हिसाब से लिखना है तो इसमें सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव होगी। एंड द लास्ट वन, किसी को ये वाला एक्सपेंशन पता है? यस और नॉट?
Alex, are you there or not? नो मैम। Okay. ठीक है, ये देखते हैं क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या करना है, 2 × करके सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, दो दो को। तो 2xy, फिर आता है वाई जेड, तो 2yz एंड देन जेड एक्स, 2zx। यहाँ पे जेड में so that आपको समझ में आएगा कि ये जेड है। तो ये सब आइडेंटिटीज लिखनी है। तो हो गया सबका। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, expand the following. Expand the following terms. Expand the following terms. The first one is expand करना है मीन्स कि ગુજરાતીમાં વિસ્તરણ કરવું, વિસ્તારવું, બરાબર? Expansion, વિસ્તરણ. First one is x 3x plus 2 whole square. इसको एक्सपांड करना है। कैसे करते हैं एक्सपांड? तो हमने x प्लस वाई होल स्क्वायर का की फॉर्मूला देखी, ठीक है। x प्लस वाई होल स्क्वायर की फॉर्मूला देखी, तो क्या हुआ है वो फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर करो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है, उसका स्क्वायर कर दो। प्लस करके 2xy मीन्स की 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, राइट। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म,
एंड देन प्लस करके वाई स्क्वायर मीन्स की लास्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर, तो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर। क्या होगा 3x होल स्क्वायर, तो 3 को भी स्क्वायर लगेगा और x को भी स्क्वायर लगेगा मीन्स की 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 2 12, 12x और ये 2 स्क्वायर तो ये हो गया 4, so this is the answer। Second, 4x minus 3y whole square। थर्ड हम इसके बाद करेंगे xy minus 2y whole square। इसको एक्सपांड करो, कर सकते हो खुद से। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सी आपको इसको प्लस करके माइनस कंसीडर करना है तो आप ये भी कर सकते हो। 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है ऐसी, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो। और नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है तो ये यहाँ पे नेगेटिव, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। Now try to solve this third question। तो क्या ऐसा आंसर मिलेगा। वाई स्क्वायर कॉमन में दिख रहा है तो वाई स्क्वायर को बाहर निकाल दो, ना निकालो तो भी कोई बात नहीं। या तो आप यहाँ से ही ऐसा कर दो कि वाई इज कॉमन, ठीक है x-2 और होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू x-2 होल स्क्वायर, फिर इसको एक्सपांड करो, ऐसे भी कर सकते हो आप, तो ये सेम आंसर मिलेगा उसमें।
x divided by 2 plus 5 whole square. ये करो सॉल्व. एनीवन किसी ने सॉल्व किया ये आंसर बता सकते हो? x square by 4 plus 5x plus 25. वेरी गुड. So this will be x square by 4 plus 5x plus 25. This is x by 3 minus y by 2 whole square. So the answer is x square by 9 minus xy divided by 3 plus y square by 4. Next question is 2x plus 3 whole cube. ओके, क्यूब की फॉर्मूला को फॉलो करो. दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो. जो भी है आप ब्रैकेट वाली टर्म का यूज करो तो ब्रैकेट फिर बाद में खोलना है, एज इट इज नहीं रखना है.
cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. तो क्या होगा 8x³ प्लस ये 4x² हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैंने अंदर ले लिया। तो अब ये क्या बनेगा 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। મેમ આ આન્સર છે. हम्म બ્રેકેટ વાળી મેથડ થી કર્યું તમે? હા મેમ. यहाँ पर फरीથી કરીએ બ્રેકેટ વાળી મેથડ થી। तो यहाँ पे possible बनते हैं तो और करके हम दूसरी मेथड करते हैं। x³ plus y³ right, x³ plus y³ plus 3x means the first term and second term और x plus y। નહીં મેમ મારે મિસ્ટેક હતી. ओके कई वांधो नहीं, बीजाने पण ख्याल आवे सेकंड मेथड। So this will be 8x³ plus 27। Now this becomes 3 into 6 18x into 2x plus 3 ब्रैकेट खोल दो प्लस हाँ ओके 36x² प्लस 54x हो गया। तो इसको अरेंज करके लिखते हैं। ये कोई भी मैनर से आप जाओ अल्टीमेटली आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो क्या सबका ये યસ મેમ. everyone it's 12:21। एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 7th क्वेश्चन। x minus 4y whole cube ये सॉल्व करके हम फिर यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ओके तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कंसिडर करो, नेगेटिव वाली अगर आपको नहीं याद रहती तो x प्लस माइनस 4y होल क्यूब
और ये फिर जहाँ पे 4y आप लिखो वहाँ पे -4y, -4y लेके आप चलो तो भी आंसर सेम ही मिलेगा आपको। तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाली दोनों स्क्वायर वाली फॉर्मूला आप सिर्फ याद रखो तो भी काम चल जाएगा। बट अब अभी हमें यहाँ पे हमने लिखी है तो हम ये वाला यूज करते हैं। तो ऐसा आंसर मिलेगा या तो या तो a³ + b³, नो माइनस, सब नेगेटिव आएगा, -3 फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म और ब्रैकेट एज इट इज। ये होगा 12x² माइनस माइनस प्लस 48x² तो दोनों तरीके से आप जाओ आंसर सेम ही मिलेगा। राइट डाउन एवरीवन। Now give your attendance. Give your attendance in the chat box. Okay, leave हो गया। वेट मैं आपकी यहाँ पे ही अटेंडेंस कर देती हूँ। ओके ठीक है। नंबर 1 यश नहीं है, करण है, प्रेजेंट मैम। यस, हर्षित नहीं है, then मलय, यस। ओके, ऐश्वर्या है, संहित, यस मैम। ओके, मनन है, यस मैम। जैनिल भी है और ब्रिजेन है, यस। ओके। सो यू गाइस यू कैन लीव, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ओके। बाय एवरीवन।